measurement of length. Or an important concept, it is parallax method. We understand about the parallax method now. So let's discuss about the measurement of mass and measurement of time. But first of all, we discuss how much minimum and how much maximum length can be determined. So we discuss about the ranges of length from minimum to maximum. So we discuss about the ranges of length. So first is 1 for meter. So smallest length is 1 for meter. For me, or we can write as 1 f. And this is 10 to the power minus 15 meter. We define each length in terms of meter because meter is a SI unit of length. And after that, 1 angstrom. So 1 angstrom is represented like that, and this is 1 angstrom, and this is equals to 10 to the power minus 10 meter. After that, this is 1 AU. 1 AU. 1 AU is 1 astronomical unit. 1 astronomical unit that is equal to 1.496 into 1.496 into 10 to the power minus 10 to the power plus 11 मीटर, 10 to the power plus 11 मीटर. ठीक है, ये क्या है? This is the average distance from 1 AU is what? 1 AU is average distance between sun and earth. Average क्यों बोला हमने? Sun and earth. Average word यहाँ पे यूज किया है because the orbit of earth around the sun, so sun is there and earth is revolved by it. This orbit is not perfectly circular. This is elliptical orbit. So elliptical orbit में कभी ये distance कम होगा, कभी ये distance ज़्यादा होगा. This is earth और this is circular orbit में तो हम क्या यूज कर सकते हैं? Distance between sun and earth. Because circle में जो distance होता है ये कभी चेंज नहीं होता. तो आप देखेंगे यहाँ ये जब अर्थ यहाँ आएगी, रिवॉल्व करेंगे इसके चारों तरफ, यहाँ आएगी, इस पोर्शन में तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम है और इस पोर्शन में सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है. सो हम पूरे एक राउंड का एक एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं और दैट इज व्हाट 1 AU. तो व्हाट इज 1 AU? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. सो अगर कोई चीज वेरी हुई है बार-बार तो हम सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और उनका एवरेज ले लेते हैं. मान लो उसने 10 रेडी ली, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, 10 को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दिया तो उससे एवरेज आ गया. अब ये के बाद है 1 लाइट ईयर. अब 1 लाइट ईयर इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि सपोज ये टाइम का यूनिट है, इसका यूनिट हो टाइम क्योंकि ईयर आ रहा है और ईयर मिनट और वीक मंथ्स ये सब किसके यूनिट है? टाइम. सो इसको ऐसा लगता है कि टाइम का यूनिट है बट इट इज यूनिट ऑफ लेंथ. इस सब किसकी यूनिट है? लेंथ, मीटर. कोई हमें स्मॉल डिस्टेंसेस ना मेजर करनी होगी तो एंगस्ट्रॉम और फर्मी यूज करेंगे. लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स या फ्रॉम अर्थ टू सन, तो हम AU और लाइट ईयर यूज करेंगे. 1 लाइट ईयर इज हाउ मच? सो 1 लाइट ईयर इज इजी टू कैलकुलेट. 1 लाइट ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल light travel the distance in 1 year, that is called 1 light year. एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा that is called 1 light year. तो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो लाइट की वेलोसिटी हम जानते हैं 3 × 10⁸ वेलोसिटी इनटू टाइम. कितना टाइम? 1 ईयर.
1 ईयर कितना होता है 365 डेज और भी 0.25 करना चाहिए 0.25 कर लेंगे बीपीएल का कंसेप्ट लेना चाहिए 365 डेज और एक डे में 24 आवर्स 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड so this is in meter per second and this days is converted into seconds so seconds can cancel so this is basically a unit of length this is represented in terms of meter okay so and finally we have to calculate these all values so we put directly this is equal to 9.46 into 10 to the power 15 9.46 into 10 to the power 15 meter so how much 1 light year this is in meter 1 parsec is also there as a unit 1 parsec PARSEC or it is also called 1 parallelic second and this is equal to 1 parallelic second that is equal to 3.08 into 10 to the power 16 this is equal to 3.08 into 10 to the power 16 so this small to large ranges of length discussed here so what is 1 parallelic second so suppose there are two stars A and B or we can say that one is sun and one is earth and the distance between these two is 1 a so if an angle measured from somewhere and this angle is very small suppose this angle is 1 second this angle is 1 second in previous class we discussed that 1 second is a unit of 1 second is a unit of angle we can measure the small angle in 1 minute 1 second also so if the angle subtended at two stars that are 1 AU away from each other so this distance is equal to 1 parsec this distance is 1 parsec so this is 1 parsec so this angle is very small so this object this is very far away from this one so we can say that what is this the distance the parsec is the distance at which average radius of earth's orbit subtended an angle of 1 arc second so if this angle is 1 second and the distance between these 2 points is 1 AU then this length is known as 1 parsec this is also 1 parsec these two are similar so we understand about the 1 AU the average distance between sun and earth 1 light year the distance traveled by the light in 1 year and 1 parsec is the distance the arc is 1 AU and the angle is 1 second so the distance the radius is known as 1 parsec so these are the range of small to large lengths now let's discuss next topic is measurement of mass measurement of mass so measurement of mass is very easy generally we measure the mass using a balance instrument and we put a bar or mass any physical quantity which we want to measure put in another pen and we compare these quantities and when these two are equal then we can by this method we can measure the mass of or weight of another quantity so mass basically is a property of matter it does not depend on the temperature pressure and other physical conditions or the SI unit of mass is 1 kg we already discussed about that the mass is defined as the Planck's constant in terms of
का क्या मीनिंग है, क्या वैल्यू होता है? वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है 6.62 into 10⁻34. Okay. Now, so we while dealing with the atoms and molecules, kilogram is very large unit. So we have to discuss about the smallest unit. So here, another unit to measure the mass of molecules, atoms, etc. Small element का अगर मास मेजर करना है, so we define one unit, that is 1 AMU, or we can say that 1 U. अभी इसको 1 U लिखते हैं, AMU. AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट. और AU को हम kg से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इतना ही होता है ऑलमोस्ट जितना एक प्रोटॉन का मास होता है. जितना एक प्रोटॉन का मास होता है उतना ही होता है ऑलमोस्ट. 1 AU कितना होता है? इतना kg. कितना? ऑलरेडी हम प्रोटॉन का मास पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रॉन का मास -31 में होता है, प्रोटॉन का मास -27 में होता है. प्रोटॉन इज हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन. सो ऑलमोस्ट इतना होता है 6.67, सॉरी 1.67 और 6.67, 1.67 into 10⁻27 kg, 1 AU. और बाकी में मेजरमेंट के लिए हम बैलेंस वाला मेथड यूज कर लेंगे. अगर हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं कोई, जैसे किसी प्लेनेट का मास फाइंड आउट करना है, तब उसको तो हम तराजू में रख के तोल नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते हैं. न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हम चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है. उसमें हम ये देखेंगे कि हैवियर बॉडीज का मास कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द कॉमन बैलेंस हम लोग यूज करते हैं. वही बैलेंस जो आप सब्जी वाले के पास देखते हैं, जो दोनों बैलेंस हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो सब्जी रखी है ये कितना है, तो हम उसके लिए सब्जी को नहीं देखते, उसके लिए किसको देखते हैं? जो बाट रखा है उसको. अगर बाट रखा है 2 kg, तो हमने क्या कर लिया है? हमने बैलेंस कर लिया. तो हम सब्जी को नहीं देखते, हम बाट को देख के बता देते हैं कि सब्जी 2 किलो है ना. तो बैलेंस वाला मेथड यूज कर सकते हैं. और बेसिकली मैं आपको बता चुका हूं कि हम चैप्टर 8 में जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन उसको पढ़ेंगे. बहुत हैवियर कोई ऑब्जेक्ट है तो उनका मास कैसे कैलकुलेट करें. अब मास के भी रेंजेस होते हैं, मास के रेंजेस भी डिस्कस कर लेते हैं. आप जानते हैं सबसे स्मॉल रेंजेस ऑफ मास, सबसे कम मास किसका होता है? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है. इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? -30 kg की रेंज का होता है. कितना होता है? -30 kg की रेंज का होता है. एक्जेक्टली मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10⁻31 kg. और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 into 10⁻27 kg. ये वही वाला हमने यहाँ यूज किया है ऑलमोस्ट. ठीक है. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1. तो 9.1 ऑलमोस्ट 10 ही हो गया. 10 हो गया. तो 10 into 10⁻31 किस ऑर्डर का होता है? -30 kg के ऑर्डर का होता है ऑलमोस्ट, अगर 10 पावर में ही बात करें तो हम यहाँ पे कहाँ से सबसे छोटा मास ये है इलेक्ट्रॉन का, इसको हम क्या मान लेते हैं? 10 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻30 kg. 31 होता है एक्जेक्टली, बट वो 9.1 भी है तो उसको ऑलमोस्ट 10 मान लेते हैं. तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कम होता है. और मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ये कितना होता है? ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻55 kg. ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं. इसका साइन है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस. एक्जेक्टली नहीं, इक्वल लगा देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए. तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का क्या मतलब है? जितना यूनिवर्स आज तक साइंटिस्ट ने देखा है, क्योंकि उसका कोई अर्थ तो है नहीं. हो सकता है कि और भी गैलेक्सीज मिल जाए और भी कुछ मिल जाए, बट जितना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका मास कितना
एक टेबल आपको दिया हुआ है, उसमें और भी इनके बीच के जो मासेस हैं उनके बारे में भी बात की हुई है। ऐसी लेंथ का भी टेबल दिया हुआ है, इनको रटने का जरूरत नहीं है, आप एक बार देख लेंगे तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, फिर प्रोटॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास -31 या -30 और प्रोटॉन का मास -27। 10 पावर में बात कर रहे हैं हम लोग, बीच वाला जो आगे वाला डिजिट है उसकी बात नहीं कर रहे फिलहाल। और यूरेनियम एटम का मास है 10⁻⁻25 kg, सारे मास kg में है। तो आप देखते हैं रेड ब्लड सेल जो आरबीसी होता है हमारी बॉडी में, उसका मास होता है 10⁻13 kg। डस्ट पार्टिकल जो होता है, एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल, उसका मास है 10⁻9। और रेन ड्रॉप जो होती है उसका मास है 10⁻6। अब भारी होती जा रही है चीजें, आरबीसी, और ये बिल्कुल लाइट पार्टिकल्स हैं। मॉस्किटो, देख लो फिजिक्स का कमाल, मच्छर तक का मास आपने मेजर कर रखा है और उसका मास होता है 10⁻5 kg। ग्रेप, अंगूर, उसका मास है 10⁻3। ह्यूमन एवरेज मास कंसिडर किया है, ऐसा नहीं मानना है कि हमारा भी इतना ही है, ठीक है। एवरेज जो ह्यूमन है उसका मास 10⁻2 मतलब 100 kg, ये मान के चले हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल वगैरह जो होते हैं, कार और ये सब, इनका मास एवरेज 10⁻3 मतलब 1000 kg के आसपास होता है। बोइंग एयरक्राफ्ट जो होता है 747, उसका मास 10⁻8। मून का मास 10⁻23। अर्थ का मास 10⁻25। सन का मास 10⁻30। मिल्की वे गैलेक्सी 10⁻41 और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10⁻55। तो ये जस्ट आपको बस एक बार रीड आउट कर लेना है, इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज के लिए। कभी इसमें से क्वेश्चन नहीं आता कि ऐसा नहीं पूछता कि मॉस्किटो का मास कितना है, बस थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कितनी वैरायटी ऑफ मासेस होते हैं। और स्मॉल से स्मॉल मास से लेकर हम इतने लार्ज मास तक की स्टडी साइंस में करते हैं। छोटी सी चीज जिसका मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसकी भी स्टडी हम साइंस में करते हैं। और बहुत बड़ा यूनिवर्स के बारे में भी कि सन अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसका भी स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं। सो वी आर डीलिंग विद द वैरायटी ऑफ मासेस। सो द बट वी डिस्कस हियर स्मॉल एंड लार्ज। सो स्मॉलेस्ट इज 10⁻30 kg, that is the mass of an electron, and highest larger range is 10⁻55 kg observable unit.